بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام وعبوز الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من النار ونحاس ولا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف مجرمون بسيماهم فيوخذوا بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فروش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد। एक सूरह फातिहा मरहूम अजीज़ फ़ातिमा बिनते सैयद मोहम्मद बाकर की ये को आप लोग पढ़कर आप उनको जो है दुआ कामना शिफा अता फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहा व तमत्तअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फर्श मजलिस फर्श मजलिस पा फातिमा ज़हरा फर्श मजलिस पा फातिमा ज़हरा लम्हा 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 शुमार करती हैं। आज़ादारो आओ मजलिस में फातिमा इंतज़ार करती हैं। फातिमा इंतज़ार करती हैं। चार में से और मुलाज़ा फरमाएं। या रब कोई मिल जाए ना पहचानने वाला, या रब कोई मिल जाए ना पहचानने वाला। बाजार में सज्जाद दुआ मांग रहा है, बाजार में सज्जाद दुआ मांग रहा है। तारीख़ ने गैरत का खुदा माना है जिसको माँ बहनों की खातिर वो रिदा मांग रहा है। माँ बहनों की खातिर वो रिदा मांग रहा है। मसाहिब से मुताल्लिक़ एक मतलब दो तीन बंद मुलाज़ा फरमाएं बतौर ख़ास। उससे क़ब्ल एक सलाम के दो तीन शेर मुलाज़ा फरमाएं। नहरे अतश वफ़ा की
तराई है करबला, नहरे अतश वफा की, तराई है करबला, क्या खूब एक भाई को भाई है करबला, क्या खूब एक भाई को भाई है करबला, टुकड़ों से अपने दिल के सजाई है करबला, टुकड़ों से अपने दिल के सजाई है करबला, सरवर ने घर लुटा के बसाई है करबला, सरवर ने घर लुटा के बसाई है करबला, सरवर ने घर लुटा। ये शेर ख़ास तौर से देखिएगा शहज़ादी के हवाले से कि इस कारला शरीक में दोनों शरीक हैं, इस कारला शरीक में दोनों शरीक हैं, भाई बहन ने मिलके बनाई है करबला, भाई बहन ने मिलके बनाई है करबला, भाई बहन ने मिल। ये भी शेर देखिएगा खास तौर से, करबो बला का कैसे सबक भूल जाऊं मैं, करबो बला का कैसे सबक भूल जाऊं मैं, घुट्टी में मुझको माँ ने पिलाई है करबला, घुट्टी में मुझको माँ ने पिलाई है करबला, घुट्टी में मुझको माँ। ये भी शेर देखिएगा नफ्सियाती शेर है, मुलाज़ा फरमाइएगा बतौर ख़ास कि मस्जिद भी देखता हूँ तो कहता हूँ या हुसैन, खास तौर कि मस्जिद भी देखता हूँ तो कहता हूँ या हुसैन, इतना दिलो दमाग पे छाई है करबला, इतना दिलो दमाग पे छाई है करबला, मौला सलामत रखे, इतना दिलो दमाग पे छाई है करबला, मुनकिर नकीर बाद में आए है कब्र में, ये हम सब का अकीदा मुलाज़ा फरमाइएगा बतौर ख़ास कि मुनकिर नकीर बाद में आए है कब्र में, पहले मिजाज पूछने आई है करबला, पहले मिजाज पूछने
आई है करबला, पहले मिजाज पूछने आई है करबला। और ये आखिरी शेर मुलाज़ा फरमाइएगा, पहले मिजाज पूछने आई है करबला, काबे की आरज़ू थी तो 6 माह जोड़ कर, काबे की आरज़ू थी तो 6 माह जोड़ कर, असगर ने तेरी उम्र बढ़ाई है करबला, असगर ने तेरी उम्र बढ़ाई है करबला। मैंने विकार देखा है कद उस का घट गया, बतौर खास देखिएगा कि मैंने विकार देखा है कद उस का घट गया, जिसने किसी भी रुख से घटाई है करबला, जिसने किसी भी रुख से घटाई है करबला। सलावत पढ़े मोहम्मद। एक मतलब 2 शेर मसाहिब से मुताल्लिक़, उसके बाद जनाब अज़दार रज़वी साहब। नाम ज़हरा है मेरा, लाल में दुख पाई हूँ, मैं तुझे खुद से रोने के लिए आई हूँ, नाम ज़हरा है मेरा। शहजादी की मुसीबत मुलाज़ा फरमाइएगा, खुद बयान फरमा रही है शहजादी कि दाग मोहसिन का मदीने में उठाया मैंने, दाग मोहसिन का मदीने में उठाया मैंने, हाय पसलियाँ टूट गई और छुपाया मैंने, पसलियाँ टूट गई और छुपाया मैंने, चैन तुरबत में भी एक पले को न पाया मैंने, हाय चैन तुरबत में भी एक पले को न पाया मैंने, नाम ज़हरा है मेरा, नाम ज़हरा है मेरा। आखिरी बंद शहजादी जब अपने बेटे की मैयत पर पहुंची है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश पर, तो क्या फरमाया मुलाज़ा फरमाइएगा कि हाय खून की चादर तो हटाओ के मैं दीदार करूं, हाय खून की चादर तो हटाओ के मैं दीदार करूं, अपनी ममता का भला किस तरह इज़हार करूं, हर जगह तीर है पैवास्त कहाँ प्यार करूं, हर जगह तीर है पैवास्त कहाँ प्यार
करूं, नाम ज़हरा है मेरा, नाम ज़हरा है मेरा। हज़रात फिर से एक मरतबा सूरह अल-हम्द और सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहुमा अज़ीज़ फ़ातिमा बिनते सैयद मोहम्मद बाक़र रिज़वी की रूह को इसाले सवाब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना व नबियना व शफ़ीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्तजाब लहुम रब्बुहुम इन्नी ला उज़ीउ अमला आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। हज़रात गिरामी, ये मजलिस इसाले सवाब एक मरहुमा, एक मोमिना, एक मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ादार के इसाले सवाब की मजलिस है। लिहाजा चूँकि एक मोमिना के इसाले सवाब की मजलिस है, मैंने मुनासिब समझा कि आपके सामने इस वक्त की गुफ्तगू के लिए कुरान मजीद की एक ऐसी आय करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया जाए कि जिसमें खुदावंद आलम साहिबान अमल मर्दों के साथ साथ साहिबान अमल ख़वातीन की मदहोसना फरमा रहा है और ऐलान हो रहा है कि अल्लाह हरगिज़ भी किसी अमल करने वाले के अमल को बर्बाद नहीं जाने देता, किसी भी अमल करने वाले के अमल को रायगा नहीं होने देता, बेकार नहीं होने देता, चाहे वो अमल किसी मर्द ने अंजाम दिया हो, चाहे वो अमल किसी खातून की जानिब से अंजाम दिया गया हो। देखिए, कुरान की ये आयत बहुत ही वजाहत के साथ एक बात पे और रोशनी डाल रही है और वो बात यह है कि अल्लाह की जानिब से बंदों को जो इनामात मिलते हैं, अल्लाह की जानिब से बंदों को जो नेमात मिलती हैं, जो जज़ा मिलती है, जो अज्र मिलता है, वो जिन्स की बुनियाद पर नहीं मिलता है, वो अमल की बुनियाद पर मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ये नहीं देखता कि ये काम किसने किया है। अल्लाह काम करने वाले को, अमल करने वाले को नहीं देखता है, बल्कि अमल को देखता है और अमल की बुनियाद के ऊपर इनामात मिलते हैं, अमल की बुनियाद के ऊपर जज़ा मिलती है, अमल की बुनियाद के ऊपर अज्र मिलता है। अब वो अमल चाहे किसी मर्द ने अंजाम दिया हो या वो अमल किसी खातून ने अंजाम दिया हो, अगर अमल नेक है तो जो अमल नेक की जज़ा और जो अमल नेक का इनाम व अज्र एक मर्द के लिए रखा गया है, वही नेक आमाल का अज्र व सवाब एक ख़ातून के लिए रखा गया है। जो नमाज का सवाब एक मर्द के लिए है, वही नमाज़ पढ़ने का सवाब एक ख़ातून के लिए है। जो रोज़ा रखने का अज्र एक मर्द के लिए रखा गया, वही रोज़ा रखने का अज्र एक ख़ातून के लिए रखा गया। इस्लाम में ऐसा नहीं है कि एक मर्द नमाज़ पढ़े तो उसे ज़्यादा सवाब दिया जाए, एक ख़ातून नमाज़ पढ़े तो उसे कम सवाब दिया जाए। एक मर्द रोज़ा रखे तो उसके हिस्से में ज़्यादा सवाब आए और एक औरत रोज़ा रखे
तो उसके हिस्से में कम सवाब आए। एक मर्द हज करने जाए तो ज़्यादा सवाब बटोर के लाए, वो एक औरत हज करने जाए तो उसके हिस्से में कम सवाब आए, ऐसा नहीं है। इस्लाम ने आमाल के मामले में जिन्स को बुनियाद नहीं बनाया है, आमाल के मामले में नीयत अमल को बुनियाद बनाया है, अमल को बुनियाद बनाया। अब अगर एक मर्द नेक अमल करता है तो अल्लाह की जानिब से वही अजर व सवाब है, और एक ख़ातून वही अमल करती है तो जो अजर व सवाब एक मर्द के हिस्से में गया वही अजर व सवाब एक ख़ातून के हिस्से में जाएगा। इस बात पर मैं इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि एक तबका जो मुखालिफ दीन है, मुखालिफ इस्लाम है, वो मुसलसल ये प्रोपेगेंडा करता रहता है कि साहब इस्लाम में औरतों को कोई इज़्ज़त नहीं दी गई है, इस्लाम में औरतों का कोई वक़ार नहीं है, इस्लाम में औरतों का कोई रुतबा और कोई हक़ नहीं रखा गया, बल्कि इस्लाम तमाम तर मर्दों को तरजीह देता है। और इस्लाम ने जितने भी इनामात रखे हैं वो मर्दों के लिए, जितने भी अजर रखे हैं वो मर्दों के लिए, जितने भी हुकूक़ रखे हैं वो मर्दों के लिए। और इस्लाम ने औरत का कोई हक़ नहीं रखा और औरत को कोई रुतबा नहीं दिया। ये मुसलसल एक इस्लाम दुश्मन तबका इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है। तो मैं उन अफराद से जो ये कहते हैं कि साहब इस्लाम में मर्दों के हुकूक़ हैं, औरतों के हुकूक़ नहीं हैं, जो लोग कहते हैं कि इस्लाम ने मर्दों को इज़्ज़त दी है, औरतों को इज़्ज़त नहीं दी है, उनसे पहला सवाल तो ये है कि सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने कौन सा इस्लाम पढ़ा है, आपने किस इस्लाम का मुतालिया किया है। इसलिए कि इस्लाम भी दो हैं, एक कुरान वाला इस्लाम है और एक मुसलमान वाला इस्लाम है। यानी एक इस्लाम वो है जो कुरान की आयतों में मौजूद है, कुरान के सूरों में मौजूद है, अहकाम कुरानी के ज़रिए मिलता है, और एक वो इस्लाम है जो ख़ुद कलमा पढ़ने वालों के अपने जहनों की इख्तिरा है। तो आपने कौन सा इस्लाम पढ़ा है? भाई देखिए, मैं नहीं जानता कि मुसलमान वाले इस्लाम में औरत की इज़्ज़त है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम कि मुसलमान वाले इस्लाम में औरत की वक़ात वक़ार है कि नहीं। मैं इतना जानता हूँ कि अगर कुरान वाले इस्लाम में, ये जुमला गौर सुनिएगा, अगर कुरान वाले इस्लाम में औरत की कोई इज़्ज़त न होती, अगर कुरान वाले इस्लाम में औरत का कोई वक़ार न होता, अगर कुरान वाले इस्लाम में औरत को तरजीह न दी गई होती या इज़्ज़त न दी गई होती, तो कुरान में सूरह रजुल होता, सूरह निसा न होता। भाई अरबी ज़बान में रजुल मर्द को कहते हैं और निसा खातून को कहते हैं। कुरान में सूरह निसा मौजूद है, कुरान में सूरह रजुल नहीं मौजूद है। फिर से जुमला सुनिए कि अगर इस्लाम में मर्दों की इज़्ज़त होती और औरतों की इज़्ज़त न होती तो कुरान में सूरह रजुल होता, सूरह निसा न होता। अरे सूरह ईसा होता, सूरह मरियम न होता। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान में सूरह निसा क्या ऐलान कर रहा है कि अगर औरतों की कोई वक़्त न होती तो कुरान में सूरह निसा क्यों नाजिल किया गया? अगर औरत की कोई इज़्ज़त नहीं है तो कुरान में सूरह मरियम क्यों मौजूद है? भाई वो लोग जो कहते हैं कि साहब इस्लाम में कुरान औरत की इज़्ज़त नहीं है, तो कुरान वाला इस्लाम पढ़ के देखिए कि कुरान वाले इस्लाम में औरत को कितनी इज़्ज़त दी गई है। देखिए, अगर कुरान वाले इस्लाम की नज़र में औरत की कोई इज़्ज़त न होती तो आप अरकान हज को याद कीजिए कि तवाफ़ काबा करना रुकने हज होता, रमिया जमारात करना रुकने हज होता, लिबास हज पहनना, अहराम पहनना रुकने हज होता, लेकिन सफ़ा व मरवा के बीच में दौड़ना रुकने हज ना होता। भाई अगर अल्लाह की नज़र में, कुरान की नज़र में औरत की कोई इज़्ज़त ना होती तो सफ़ा व मरवा के बीच में दौड़ना रुकने हज करार ना पाता। भाई ये जो सफ़ा व मरवा के बीच में दो पहाड़ियाँ हैं, जब हज करने वाले हज करने जाते हैं तो हुक्म है कि इन दोनों पहाड़ियों के बीच में 7 चक्कर लगाओ, जिसको मजहबी ज़बान में सही करना कहते हैं। ये सही रुकने हज है। मुझे बताइए, ये सही करना किस नबी की पैरवी है? ये सही करना किस रसूल की इताअत है? ये सही करना किस पैगंबर की पैरवी है? भाई कौन नबी और कौन रसूल था जिसकी पैरवी सही के ज़रिए की जाती है? तारीख़ क्या कह रही है? तफसील क्या बता रही है? तो ये सही करना किसी नबी की पैरवी नहीं है, ये सही करना किसी रसूल की पैरवी नहीं है। तारीख़ बता रही कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम की माँ जनाब हाजरा इन दो पहाड़ियों के बीच में दौड़ी। जनाब इस्माईल की प्यास देख के पानी की तलाश में जनाब हाजरा इन दो पहाड़ियों के बीच में दौड़ी। तो अल्लाह को जनाब हाजरा का ये अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ने बीबी हाजरा के अमल को रुकने हज करार दे दिया।
अब क्या पूछना कि इस्लाम में औरत की कोई इज़्ज़त है कि नहीं। अरे इस्लाम में अगर औरत की इज़्ज़त न होती तो हाजरा का अमल मर्दों के लिए भी काबिल इताअत न होता है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई एक औरत का अमल मर्दों के लिए भी काबिल तासी है, एक औरत का अमल मर्दों के लिए भी काबिल इताअत करार दिया गया। तो ये प्रोपेगेंडा, ये झूठ है कि साहब इस्लाम में औरत की इज़्ज़त नहीं हो, इस्लाम में औरत की कोई वक़्त नहीं है, इस्लाम में औरत का कोई वक़ार नहीं है। देखिए कुरान, देखिए कुरान, मैंने अर्ज़ किया कि कुरान वाला इस्लाम समझना चाहिए। भाई अगर कुरान वाले इस्लाम से पूछिए कि औरत की इज़्ज़त है कि नहीं, तो जब आप कुरान वाले इस्लाम से औरत के बारे में पूछेंगे तो कुरान आपको जवाब देगा कि भाई अगर इस्लाम में सिर्फ मर्दों की इज़्ज़त होती और औरतों की इज़्ज़त न होती तो कुरान जवाब देगा कि फ़िरौन काबिल लानत न होता और जनाब आसिया काबिल एहतराम न होती। भाई फ़िरौन मर्द है मगर काबिल लानत है, जनाब आसिया ख़ातून है मगर काबिल इज़्ज़त है। कुरान ज़िक्र कर रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू, कि वो जो लोग ईमान ला चुके हैं हमने उनके लिए मिसाल बनाया है। वमराता नूह, किसको मिसाल बनाया है? वमराता फ़िरौन, हमने मिसाल बनाया है जनाब आसिया को, फ़िरौन की ज़ौजा को। किसके लिए मिसाल बनाया है? व ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू, जो ईमान ला चुके हैं हमने उनके लिए मिसाल बनाया। वमराता फ़िरौन, यानी जनाब आसिया को मोमिनों के लिए मिसाल बनाया है। देखिए अजीब व गरीब बात है कि जनाब आसिया फ़िरौन के घर में रहती हैं, काफिर के घर में रहती हैं, मगर कुरान ये कह रहा है कि उनको मोमिनों के लिए मिसाल बनाया है। फिर इसी कुरान में जहाँ फ़िरौन की ज़ौजा जो मोमिना थी जनाब आसिया का ज़िक्र हो रहा है, उसी कुरान में जनाब नूह पैगम्बर और जनाब लूत पैगम्बर की बीवियों का ज़िक्र हो रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू, कि वो जिन्होंने कुफ्र किया है हमने उनके लिए मिसाल बनाया। वमराता नूहा वमराता लूत, कि हमने हज़रत नूह की ज़ौजा को और हज़रत लूत की ज़ौजा को काफिरों के लिए मिसाल बनाया है। कुरान मिसाल के मामले में मिसाल है। अरे जो फ़िरौन के साथ रहती थी वो मोमिनों के लिए मिसाल, और जो जनाब नूह और जनाब लूत के साथ रहती थी वो काफिरों के लिए मिसाल। मैंने अर्ज़ किया कि कुरान मिसाल के मामले में भी बेमिसाल है। भाई काफिर के साथ रहने वाली मोमिनों के लिए मिसाल है, और कुरान देखिए पैगंबरों के घर में रहने वालियाँ काफिरों के लिए मिसाल बनाई गई। कुरान समझाना चाह रहा है कि अल्लाह ज़ौजियत नहीं देखता है, अहलियत देखता है। अगर अहलियत होती है तो काफिरों के साथ रहने में नुकसान नहीं होता है, और अगर अहलियत नहीं होती तो नबियों के साथ रहने में फ़ायदा नहीं होता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये प्रोपेगेंडा है, ये इल्ज़ाम है दामन इस्लाम के ऊपर कि साहब इस्लाम में औरत की कोई वक़्त नहीं हो, इस्लाम में औरत की कोई इज़्ज़त नहीं है। जब आप ऐसे अफराद से जो इस्लाम के हवाले से हुकूक़ निसा की आवाज़ उठाते हैं कि साहब हम तो औरतों के हक़ की आवाज़ उठा रहे हैं इसलिए कि इस्लाम ने औरत के हुकूक़ को पामाल किया, आप उनसे पूछिए कि भाई वो दलील क्या है जिस दलील से ये कहा जाता है कि औरत का कोई रुतबा नहीं हो, औरत की कोई इज़्ज़त नहीं है। तो एक दलील बयान की जाती है, उस दलील का नाम है पर्दा, उस दलील का नाम है हिजाब, उस दलील का नाम है चादर, उस दलील का नाम है बुरक़ा। भाई ले दे के यही जवाब दिया जाता है कि साहब अगर औरत की कोई इज़्ज़त होती है, औरत को कोई वक़ार होता तो उसे पर्दे के बंधनों में न बांधा जाता, उसे हिजाब की डोरियों में न लपेटा जाता, उसके ऊपर पर्दा वाजिब न किया जाता। तो इज़ान गिरामी, दुनिया इस पर्दे के फ़लसफ़े को समझे कि पर्दे का फ़लसफ़ा क्या है। भाई पर्दा पाबंदी नहीं है, जैसा कहा जाता है कि साहब औरतों पे पाबंदी लगा दी गई, पर्दे का पाबंद कर दिया गया है। तो ये बात भी समझना ज़रूरी है कि भाई अगर पाबंदी की बात है, अगर पर्दे को पाबंदी समझा जाए, अगर बुरक़े को पाबंदी समझा जाए, अगर हुक्म हिजाब को पाबंदी समझा जाए, तो इस्लाम में पाबंदी सिर्फ ख़वातीन पर नहीं लगी हैं। अगर पाबंदी मान लीजिए बफ़र्ज़ मोहाल, अगर मैं कह रहा हूँ इसको पाबंदी मान लीजिए, तो शरीयत में सिर्फ ख़वातीन पर पाबंदियाँ नहीं लगाई गई हैं। इस्लाम एक बैलेंसिंग मज़हब है। अगर पाबंदियाँ हैं तो कुछ पाबंदियाँ मर्दों पर भी आयद की गई हैं और कुछ पाबंदियाँ ख़वातीन पर भी आयद की गई हैं। अगर पर्दे को पाबंदी समझते हैं तो अगर औरत को पर्दे का पाबंद किया गया है तो मर्दों को नज़रों का पाबंद किया गया है। औरत के सर पर चादर डाली गई है तो मर्दों की नीयत पर चादर डाली गई है। औरत के लिए कानून है कि नामहरम लोगों के सामने बेपर्दा आने न पाए,
और मर्दों के लिए कानून ये है कि वो नामहरम ख़वातीन की तरफ नज़रें उठाने ना पाए। भाई इस्लाम एक बैलेंसिंग मज़हब है। भाई औरत के लिए कानून है कि वो बेपर्दा नामहरमों के सामने आने ना पाए, तो फिर मर्दों के लिए भी कानून है कि वो नामहरमों की तरफ नज़र उठाने ना पाए। अगर औरत ज़ौजा बन जाए, शौहर की इताअत वाजिब है, तो भाई मर्द अगर बेटा है तो माँ बाप की इताअत वाजिब है। भाई पाबंदियाँ दोनों तरफ हैं। औरत को पर्दे का पाबंद किया है, मर्दों को नियत का पाबंद किया है। ज़ौजा शौहर की इताअत की पाबंद है, तो औलाद माँ बाप की इताअत की पाबंद है। भाई अगर औरत पर यह पाबंदी है कि मैदान जिहाद में आने न पाए, तो मर्दों पर यह पाबंदी है कि मैदान जंग से भागने न पाए। सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई पाबंदियाँ दोनों तरफ लगाई गई हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये पर्दा कोई पाबंदी नहीं है अजीज़ों, हिजाब कोई पाबंदी नहीं। लेकिन अगर पाबंदी मान लीजिए, तो मैंने अर्ज़ किया कि कुछ पाबंदियाँ अगर ख़वातीन पर लगाई गई हैं, तो कुछ पाबंदियाँ मर्दों पर भी लगाई गई हैं। और जैसे फिर कुछ फ़जीलतें मर्दों के हिस्से में आई हैं, वैसे ही कुछ फ़जीलतें ख़वातीन के हिस्से में भी आई हैं। मैं अब आपको पैगम्बर इस्लाम सरकार ख़त्मी मरतबत जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाता हूँ कि पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि सुनो, जब किसी के घर में बेटा पैदा होता है, भाई नबी फरमा रहे हैं कि जब किसी के घर में बेटा पैदा होता है तो आवाज़ कुदरत आती है कि ये मैंने अपने बंदे पर एहसान किया। जब किसी के घर में बेटा पैदा होता है तो आवाज़ कुदरत आती है कि मैंने अपने बंदे पर एहसान किया। और नबी फरमाते हैं कि मगर जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो आवाज़ आती है बंदे ने मेरी कुदरत पर एहसान किया। भाई बेटा अल्लाह का बंदे पर एहसान है और बेटी बंदे का अल्लाह पर एहसान है। इस हदीस को तवज्जो सुनिएगा। पैगंबर ने फरमाया अगर बेटा हो तो अल्लाह ने बंदे पर एहसान किया, और बेटी हो तो बंदे ने अल्लाह पर एहसान किया। बेटा अल्लाह का बंदे पर एहसान है और बेटी बंदे का अल्लाह पर एहसान है। और एहसान का कानून है कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान का कानून ये है कि एहसान की जज़ा एहसान है, एहसान का बदला एहसान है, एहसान का एवज़ एहसान है। अब अगर बेटा हुआ तो अल्लाह ने बंदे पर एहसान किया, बंदे को एहसान का बदला देना लाजिम हो गया। लेकिन अगर बेटी हुई तो ये बंदे का अल्लाह पर एहसान है, अब अल्लाह को बदला देना वाजिब हो गया। अब ज़रा तारीख़ के आईने को देख के बताइए कि नबी के घर में तारीख़ की आँखों ने बेटे देखे या बेटी देखी? नबी के घर में कौन नज़र आ रहा है? तो नबी के घर में बिनते रसूल नज़र आई, जनाब बतूल नज़र आई, सैयदा नज़र आई, हज़रत ज़हरा नज़र आई, हज़रत फ़ातिमा नज़र आई, उम्मु अबीहा नज़र आई, उम्मुल फ़ज़ाइल नज़र आई, मंसूरा नज़र आई, सिद्दीक़ा नज़र आई, ताहिरा नज़र आई। भाई रसूल खुदा के घर में भी चहेती बेटी नज़र नहीं आई, इकलौती बेटी नज़र आई। अब नबी के घर में जनाब सैयदा का होना, जनाब ज़हरा का होना, ये नबी का अल्लाह पर एहसान है। भाई हदीस के मुताबिक, हदीस है ना कि अगर बेटा पैदा हो तो अल्लाह ने बंदे पर एहसान किया, और बेटी पैदा हो तो बंदे ने अल्लाह पर एहसान किया। तो ये जनाब सैयदा का वजूद अल्लाह का नबी पर एहसान नहीं है, ये नबी का अल्लाह पर एहसान है। अब अल्लाह पर लाजिम हुआ कि अपने नबी को इस एहसान का बदला अता करे, तो शायद अल्लाह ने तय किया होगा कि ए मेरे हबीब, सैयदा जैसी बेटी के ज़रिए तुमने मुझ पर एहसान किया है, तो अली जैसा दामाद दे के मैं तुम पर एहसान करूँगा। एक सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अज़ान गिरामी, इस्लाम एक बैलेंसिंग मज़हब है, एतदाल है। यहाँ इफ़रात या तफरीत नहीं है, यहाँ एक बैलेंस है। अगर कुछ फ़जीलतें मर्दों के हिस्से में आई हैं तो कुछ फ़जीलतें ख़वातीन के हिस्से में आई हैं। कुछ इनामात मर्दों के लिए रखे गए हैं तो कुछ इनामात ख़वातीन के लिए रखे गए हैं। ये बैलेंस हो। जहाँ तक मैंने अर्ज़ किया पर्दे का मामला है, गुफ्तगू तमाम हो रही है। जहाँ तक ये हिजाब है, जहाँ तक ये पर्दा है, तो अज़ीज़ों पर्दा औरत के बेवक़्त होने की दलील नहीं है। पर्दा औरत के ज़लील और रुस्वा होने की दलील नहीं है। पर्दे का फ़लसफ़ा समझना चाहिए। भाई फ़लसफ़ा इस्लामी क्या है? तो फ़लसफ़ा इस्लामी ये है कि जितनी अहम चीज़ें हैं सब पर्दे में रखी जाएं। कुरान अहम है, वो जुज़दान के पर्दे में है। भाई फ़लसफ़ा इस्लामी समझिए, जितनी अहम चीज़ें हैं सब पर्दे में रखी जाएं। कुरान अहम है, वो जुज़दान के पर्दे में है। काबा अहम है,
वो गिलाफ के पर्दे में है। अरे हमारा इमाम अहम है, वो गैबत के पर्दे में है। भाई फ़लसफ़ा इस्लामी क्या है कि पर्दा औरत के बावक़ार होने की पहचान है, पर्दा औरत के इज़्ज़तदार होने की पहचान है, और पर्दा औरत के इज़्ज़तदार होने के साथ साथ उसके मर्द के गैरतदार होने की पहचान है। अज़ीज़ों, पर्दे की अहमियत समझना चाहिए। हम अपने कौम, अपने अफराद के लोगों से, ख़ुसूसन अपनी कौम की बहनों से, बेटियों से, बच्चियों से मुखातिब हैं, वो इस बात को पैगाम समझ के सुने। देखिए, जो चादर है, ये जो रिदा है, ये जो पर्दा है, जो हिजाब है, इसको आप दुनिया के प्रोपेगेंडे के ज़ोर में इसको जलील और रुस्वा न समझिए। अगर ये चादर ऐब होती, अगर ये रिदा ऐब होती, तो कभी गिलाफ काबा की तरह जनाब सैयदा के सर के काबे पर न होती। भाई, जनाब सैयदा के सर पर रिदा है, जनाब सैयदा बाहिजाब हैं, जनाब सैयदा के सर पर चादर है। भाई तवज्जो फरमाइए, जनाब सैयदा के सर पर चादर है। वो जनाब सैयदा जिन्हें चादर की ज़रूरत नहीं है, चादर को सरे सैयदा की ज़रूरत है। भाई, जनाब सैयदा को चादर की ज़रूरत नहीं, चादर को जनाब सैयदा की ज़रूरत है। जिसकी चादर का नाम आये तथीर हो, जिसके बुरक़े का नाम सूरह नूर हो, जिसके तकिए का नाम तवक्कुल अल्लाह हो, जिसके बिस्तर का नाम मशीयत खुदा हो, जिसके उठने बैठने का नाम इस्लाम हो, जिसकी कनीज़ की ज़बान का नाम कुरान हो। तवज्जो फरमाइए, वो जनाब सैयदा, उसे चादर की ज़रूरत नहीं है, चादर को जनाब सैयदा की ज़रूरत है। चलिए बारगाह शहज़ादी में चल के अर्ज़ करें कि बीबी, सूरह नूर आपका बुरक़ा है, आये तथीर आपकी चादर है, आपको इस कपड़े की चादर की क्या ज़रूरत है? तो आवाज़ देंगी, मुझे चादर की ज़रूरत नहीं है, मुझे चादर की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे सर पे चादर क्यों है? अगर ये समझना हो तो वो चिलचिलाती हुई धूप देखो, वो मदीने में यहूदी का बाग देखो, और वो मौला अली के हाथों में बेलचा देखो। वो देखो, अली मजदूरी कर रहे हैं, वो जो कुल्ले ईमान है, वो जो मर्द मैदान है, वो जो वसी रसूल है, वो जो शौहर बुतूल है, वो जो जनाब अमीर है, वो जो मौलाए गदीर है, वो जो कुतुबुल अख्ताब है, वो जो हबीबुल अहबाब है, वो जो किताब मस्तूर है, वो जो साहिब तूर है। देखो, चिलचिलाती हुई गर्मी में वो हाथ में बेलचा लिए हुए मजदूरी कर रहा है। मुझसे न पूछो कि मेरे सर पर चादर क्यों है, अपने मौला अली से पूछो कि या अली आपके हाथ में बेलचा क्यों है, या अली आपको मजदूरी की क्या ज़रूरत। भाई यही तो सवाल है कि जनाब सैयदा का बुरक़ा सूरह नूर, जनाब सैयदा की चादर आये तथीर, तो उन्हें चादर की क्या ज़रूरत है। भाई मजदूरी करते हुए मौला अली से पूछा जाए कि या अली आपको मजदूरी की क्या ज़रूरत है। अरे आप मट्टी को छू लें तो वो सोना बन जाए, इरादा कर ले तो दीवार सोने की हो जाए, आपके पसीने के कतरे जमा हों तो वो रश्के अलमास बन जाएं। या अली आपको मजदूरी की क्या ज़रूरत है। अरे जिसके पोते सैयद सज्जाद के हाथ का धोवन जवाहर बन जाता हो, उसे मजदूरी की क्या ज़रूरत है। तो मौला अली आवाज़ देंगे, मुझे मजदूरी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हिम्मत की ज़रूरत है, तुम्हें जुर्रत की ज़रूरत है, तुम्हें क़ुव्वत की ज़रूरत है, तुम्हें गाइडेंस की ज़रूरत है। ये मैं मजदूरी अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये अपनों के लिए कर रहा हूँ। बस सुनिएगा, गुफ्तगू तमाम है। मजदूरी मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये अपनों के लिए कर रहा हूँ कि अगर कभी हालात तब्दील हो जाएं, घर में फ़क़्र फ़ाक़ा की वबा दाखिल हो जाए, गुर्बत दामनगीर हो जाए, दौलत का दामन हाथ से निकल जाए, ज़मीनें छिन जाएं, फ़क़्र फ़ाक़ा का ज़माना आ जाए और हमारे चाहने वालों को मजदूरी करना पड़े, तो हम मजदूरी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपनों के लिए कर रहे हैं। हम मजदूरी करके एक रास्ता बना रहे हैं, हम मजदूरी करके एक दर्स दे रहे हैं, हम मजदूरी करके एक सीरत बना रहे हैं कि अगर हमारे चाहने वालों को कभी मजबूरी में मजदूरी ही करना पड़े तो वो शर्म न करें कि मजदूरी कर रहे हैं, बल्कि फ़ख्र करें कि मौला अली की सीरत पर अमल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मौला अली ने मजदूरी की ताकि उनके चाहने वाले अगर मजदूरी करें तो शर्म ना आए कि मजदूरी कर रहे हैं, फ़ख्र करें कि मौला अली की सीरत पर अमल कर रहे हैं। तो जैसे मौला अली ने मजदूरी की ताकि मजदूरी करने वालों को शर्म ना आए कि वो मजदूरी कर रहे हैं, वो फ़ख्र करें कि मौला अली की सीरत पर अमल कर रहे हैं, वैसे ही जनाब सैयदा के सर की चादर भी आवाज़ दे रही है कि पर्दा करने वाली औरतें शर्म न करें कि वो पर्दा कर रही हैं, फ़ख्र करें कि मलके कौनैन की सीरत पर अमल कर रही हैं। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बस अज़ीज़ान गिरामी,
अर्ज़ करने का मकसद ये था कि कुरान की नज़र से और अल्लाह की नज़र से और अहादीस की रोशनी में अगर देखिए तो जो मर्तबा अल्लाह ने एक बाअमल मर्द को अता किया है, वही मर्तबा एक बाअमल ख़ातून को अता किया है। ये मौजू और इस मौजू पर गुफ्तगू मैंने इसलिए की कि जिन मोमिना के ये साल सवाब की मजलिस है, हमारे रफ़त आलम साहब हुसैनी चैनल के ज़िम्मेदार और हुसैनी चैनल के मालिक, उनकी अहलिया की वालदा की मजलिस है। ये अल्लाह दरजात बुलंद करे मरहुमा के और तमाम मुताल्लिक़ीन को तौफ़ीक़ सब्र अता फ़रमाए। बड़ी नेक खातून थी और जोगीपुरा जो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब है और नजफ़ हिंद कहलाता है, वहीं की ज़ियारत के दौरान वहीं के ऊपर उनकी तदफ़ीन हुई, वहीं उनका इंतकाल हुआ। यकीनन मौला अली के जवार में इस दुनिया में भी है और आखिरत में भी मौला अली के कनीज़ों का जवार ही उनको अता होगा। बस गुफ्तगू मैंने ख़त्म कर दी कि ख़वातीन के सिलसिले में प्रोपेगेंडा बिल्कुल गलत है कि अल्लाह ने औरत को कोई इज़्ज़त नहीं दी, औरत को कोई वक़ार नहीं दिया। अरे भाई, औरत की इज़्ज़त के लिए यही बहुत है कि अगर अल्लाह की नज़र में मर्दों की इज़्ज़त होती, औरतों की इज़्ज़त ना होती, तो जन्नत बाप के पैरों के नीचे रखी जाती, माँ के पैरों के नीचे ना रखी जाती। भाई हदीस मौजूद है क्या, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। ये क्या ऐलान है, ये किस बात की दलालत है, ये किस बात की अलामत है कि अल्लाह ने ख़वातीन को वो मर्तबे दिए। और फिर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम अपने दिलों में हमारी मोहब्बत की खुनकी महसूस करना तो अपनी माँ के हक़ में दुआ करना। देखिए, जितने भी जज्बे खुसूसन अहले बैत अताहार से जो हमारी वाबस्तगी है, हमारे दिल में अहले बैत अताहार की जो मोहब्बत है, इसका सब का क्रेडिट माँ की के ज़िम्मे जाता है और माँ को मिलता है। इसका सारा अज्र माँ की तरफ भी मुंतकिल होता है कि इमाम ने फरमाया कि जब अपने दिलों में हमारी मोहब्बत की खुनकी महसूस करना तो अपनी माँ के हक़ में दुआ करना। इसका मतलब अहले बैत अताहार की मोहब्बत जो हमारे दिलों में है, यह अहले बैत अताहार की मोहब्बत हमारी मोहब्बत की वजह से नहीं है, हमारी माँओं के शीर की तहारत की वजह से, हमारी माँओं के किरदार की शराफत की वजह से। ये जो हम मौला अली का ज़िक्र सुनते हैं और हमारे चेहरे गुलाबों की तरह से खिल जाते हैं, ये भी माँ की वजह से है। और ये जो एक बेकस और मज़लूम का ज़िक्र आता है, करबला में सैयदा के लुटे हुए घर का तस्करा होता है, जनाब अब्बास के बाजुओं के काटने का ज़िक्र होता है, जनाब कासिम के लाशे की पामाली का ज़िक्र होता है, जनाब अली अकबर के सीने में नेज़े के दर आने का ज़िक्र होता है, जनाब अली असगर के गले पर निशाना ताक के तीर चलने का ज़िक्र होता है और हमारी आंखों में आंसू आ जाते। ये सारा क्रेडिट भी माही को जाता है। ये माही थी जिसने अपने गोद के मदरसे में, जिसने अपने आगोश के स्कूल में हमको मौला हुसैन की मोहब्बत का दर्स दिया, जिसने हमें मातम करना सिखाया। ये जितना भी मौला हुसैन का हम गम मनाते हैं, ये ख़ास करके हमारी माँओं की तब मुंतकिल होता है। ये जो मौला हुसैन की मोहब्बत और अहले बैत अताहार की मोहब्बत है, ये माँओं की वजह से है और हमारी माँओं को ये दर्स करबला की माँओं ने दिया है। ऐसी माएँ कि आसमान की आँखों ने ऐसी माएँ नहीं देखी थी। भाई रवायतें बताती हैं कि करबला में 9 माएँ, 8 व 1 9 माएँ ऐसी थीं कि जब उनके बच्चे ज़िबा हो रहे थे तो दरे खेमा पर खड़ी हुई देख रही थी। अल्लाह अकबर, आप ज़रा माँ के दिल का अंदाज़ा लगाएं और इस रवायत को महसूस करें कि कैसी माएँ थीं। मौला हुसैन की मोहब्बत किस मंजिल के ऊपर थी कि बेटे ज़िबा किए जा रहे हैं और न वो बेहोश हो रही हैं, न वो चीख रही हैं, न वो अल्लाह से शिकवा कर रही हैं, वो तो शुक्र अदा कर रही हैं कि हमारा बच्चा कुर्बान हो गया, सैयदा का लाल महफूज है। अजीज़ों, ऐसी ऐसी माएँ कि जनाब वहब कलबी की वालदा के लिए रवायत मिलती है कि जब जनाब वहब कलबी मैदान जंग में गए और मौला हुसैन की नुसरत की और फिर न जाने कितने यजीदियों को वासिले जहन्नम करने के बाद ख़ुद भी बहुत से ज़ख्म उठा के वापस आए अपनी माँ की तरफ और ये सोच के आए कि अपनी माँ के पास जाऊं और अपनी माँ को दिखाऊं कि मेरी माँ देखें कि मैंने मौला हुसैन की मोहब्बत में कैसी नुसरत की है, मेरे जिस्म पे कितने ज़ख्म आए हैं। देखिए, ये जज्बा भी जो करबला में जनाब वहब कलबी के पास नज़र आया, इस जज्बे की तासीर भी आज तक होती है। अगर आपको याद हो तो आपको भी याद आ जाएगा और मुझे अच्छी तरह याद है
कि एक जज्बा होता है बचपने में हमारा कि जब हम बचपन में ज़ंजीर लगाते थे, हम जब बचपन में मौला हुसैन के नाम के ऊपर खून बहाते थे तो ज़रा खून हमारे ज़ख्मों से निकलता था और हमारे दिल में एक ख़याल आता था कि चले अपनी माँ को दिखाएं। हम सीधे दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आते थे, अपनी पुष्ट से कुर्ते उठा के अपनी माँ को दिखाते थे कि हमारी माँ देख ले कि हमने भी मौला हुसैन के लिए ज़ंजीर लगाई है, हमारी माँ देख लें कि हमने भी मौला हुसैन के गम में खून बहाया है। हाँ अज़ीज़ों, ये जज्बा वहीं से आया है कि वहब कलबी चले अपनी माँ की तरफ कि मेरी माँ देखे कि मैंने अपने आका व मौला हुसैन की मोहब्बत में कितना खून बहाया है, कितने ज़ख्म खाए हैं। वो सोच के आए थे कि माँ देखेंगी और कहेंगी सुभान अल्लाह, वहब क्या कहना, माशा अल्लाह मेरे लाल तुमने क्या जंग की है। वहब के दिल में यही ख्याल था। लेकिन अब जो आए अपनी माँ को सलाम किया और कहा अम्मा आपने देखा कि मैंने मौला हुसैन की मोहब्बत में कैसी जंग की है, आप मुझसे राज़ी हुई। तो जनाब वहब कलबी की माँ ने अभी शाबाशी नहीं दी, अभी अपने राज़ी होने की सनद नहीं दी, बल्कि एक अजब जवाब दिया कि वहब अभी हम आपसे राज़ी नहीं हुए हैं मेरे लाल, अभी हम आपसे राज़ी नहीं हुए हैं। कहा अम्मा आप कब राज़ी होइएगा? कहा जब तुम्हारा सर कट के मेरे आका के कदमों में पहुंच जाएगा। अल्लाह अकबर, ऐसी माँ आसमान की आंखों ने नहीं देखी। सोचिए बच्चा इतना खून बहा चुका है, इतने ज़ख्म जिस्म के ऊपर आ चुके, मगर अभी भी माँ को चक्कर नहीं आ रहा है, माँ बेहोश होकर गिर नहीं रही है। माँ कह रही है कि मैं तब राज़ी होंगी जब तुम्हारा सर कट के मेरे आका के कदमों में पहुँच जाएगा। अजीज़ों बस एक तस्करा और सुन लें, गुफ्तगू तमाम है ऐसी माए करबला की कि जनाब मुस्लिम इब्न औसजा, वो मुस्लिम इब्न औसजा कि जब शब आशूर मुस्लिम इब्न औसजा ने तकरीर की थी, जब मौला हुसैन ने खेमे का चराग गुल किया था और कहा था जिसको जाना हो वो चला जाए, तो सबसे पहले जनाब मुस्लिम इब्न औसजा अपनी जगह से उठे थे और कहा था फर्जंद रसूल आप ये क्या फरमा रहे हैं, हम आपको छोड़ के चले जाएं, हम आपको इस जंगल में छोड़ के नहीं जाएंगे। अरे नबी ज़ादियों के साथ आप जंगल में तना रह जाए, दुश्मनों के नरखे में अकेले रह जाए, हम आपको छोड़ के न जाएंगे। अगर हमारा गोश्त कैंची से महीन महीन काटा जाए और हमको शहीद कर दिया जाए और हमारे जिस्मों में आग लगाई जाए, फिर हमारी राख दरिया में बहाई जाए और उसके बाद हमें फिर ज़िंदा किया जाए, तो हम फिर आपके ऊपर अपनी जान कुर्बान करेंगे। 70 मरतबा अगर यही किया जाए तो हम आप पर जान कुर्बान करेंगे, हम नहीं जाने वाले। ये मुस्लिम इब्न औसजा जब रोज़ आशूरा ये शहीद हुए और मौला हुसैन इनका लाशा लेके आए, तो अभी इमाम हुसैन ने जनाब मुस्लिम इब्न औसजा का लाशा रखा था कि कान में आवाज़ आई कि कोई बच्चा कसीदा पढ़ रहा है, कोई बच्चा शेर पढ़ रहा है। तो आवाज़ साफ साफ आ रही थी कि कोई नन्हा सा बच्चा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में कसीदा पढ़ रहा है। वो कसीदा हमारे उलमा ने किताबों में लिखा है, मैंने पूरा कसीदा तो याद नहीं किया, लेकिन एक मिसरा मुझको याद है। वो बच्चा उस कसीदे में पढ़ रहा था कि हुसैन व अमीरी व नेमल अमीर, मेरा अमीर मेरा हुसैन है और कौन है मेरे हुसैन जैसा। आप अंदाज़ा लगाएं, जहन साथ नहीं देता इस मंजिल के ऊपर कि जहाँ लाशों का अंबार हो, जहाँ खून का दरिया बह रहा हो, जहाँ सनसनाते हुए तीरों की आवाज़ हो, जहाँ तलवारों के टकराने की सदाएँ गूंज रही हों, वहाँ एक 9 साल का बच्चा शेर पढ़ रहा है कि हुसैन व अमीरी व नेमल अमीर, मेरा अमीर मेरा हुसैन है, कौन है मेरे हुसैन जैसा। अच्छा शेर पढ़ता हुआ चला। अब जब मौला हुसैन ने देखा तो एक नन्हा सा बच्चा कसीदा पढ़ता हुआ चला आ रहा है। इमाम को झुक के सलाम किया, इमाम ने जवाब में सलाम दिया और कहा कि तेरे सर पर यह अमामा किसने बांधा है? उस बच्चे ने कहा आका मेरी माँ ने अमामा बांधा है। कहा तेरी कमर में ये तलवार किसने बांधी है? बच्चे ने कहा आका मेरी माँ ने ये तलवार बांधी है। कहा तू कहाँ जा रहा है? तो कहा मेरी माँ ने कहा है अब जल्दी जाओ, जैसे तुम्हारा बाप आका हुसैन के ऊपर कुर्बान हुआ है, तुम भी जाके मेरे आका के ऊपर अपनी जान निसार कर दो, जाओ और अपने बाप की पैरवी करो, अपने आका का हक़ अदा करने की कोशिश करो। एक मरतबा मौला हुसैन ने पूछा कि ये बताओ ये सब तुम्हारी माँ ने कहा है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है?
अजीज़ो जुमला सुनिएगा, इंशाअल्लाह आँखों के आंसू ना रुकेंगे। बच्चे ने, नन्हे से बच्चे ने, 9 बरस के बच्चे ने अपने सीने को फ़ख्र से चौड़ा किया और कहा आका मेरे बाप का लाशा आपके कदमों में पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। ये जनाब मुस्लिम इब्न औसजा का बेटा था, बाप का लाशा इमाम के सामने पड़ा हुआ है और बच्चा कह रहा है कि मुझे जंग की इजाज़त दीजिए। इमाम की आंखों में आंसू आए, आपने नन्हे से बच्चे को सीने से लगाया, सूखे हुए प्यासे होंठ बच्चे के माथे पर रखे और कहा जाओ खेमे में चले जाओ। देखो बेटा, अपनी बेवा माँ को हमारा सलाम कह देना और कह देना कि अब तुमको मैदान जंग में जाने को न कहें, इसलिए कि अगर तुम इसलिए मैदान जंग में जा रहे हो और तुम्हारी माँ तुमको इसलिए मैदान जंग में भेज रही है कि तुम्हें नजात मिल जाए, तो याद रखना मुस्लिम इब्न औसजा तुम्हारी नजात के लिए बहुत हैं। तुम्हारे बाप की वजह से तुम्हें नजात मिल जाएगी, तुम्हारा इतना जज्बा बहुत है। अपनी बेवा माँ को हमारा सलाम कह दो और उनसे कह दो कि अब तुम्हें मैदान जंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। अजीज़ों, मजलिस तमाम हो गई। जैसे ही मौला हुसैन ने यह फरमाया था कि खेमे का पर्दा हिलने लगा, एक बेवा खातून के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ दी कि आका मेरे बच्चे को मैदान जंग में जाने से न रोकिए। अरे आका, अगर मेरा बच्चा ज़िंदा रह गया और बनी हाशिम के बच्चे मारे गए, अगर मेरा बच्चा ज़िंदा रह गया वो अली अकबर शहीद हो गए, अगर मेरा बच्चा ज़िंदा रह गया और कासिम शहीद हो गए, अगर मेरा बच्चा ज़िंदा रह गया वो अली अकबर ज़िबा हो गए, तो आका मैं क्या चेहरा लेके खुदा की बारगाह में जाऊंगी। आका मेरा बच्चा आपके बच्चों पर सदका हो जाए। ए फातिमा के लाल, अगर मेरा बच्चा जिंदा रह गया और आपकी औलादें शहीद हो गई, मैं आपकी अम्मा फातिमा को क्या चेहरा दिखाऊंगी। अला लानतुल्लाहि अल कौम ज़ालिमीन सयालमुल्लज़ीना ज़लमू यमुनक़लबी यनक़लबून अल्लाहुम्मा लन क़तलतल हुसैन असहाबी अला हज़रात। फिर से एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहुमा अज़ीज़ फ़ातिमा साहिबा बिनते सैयद मोहम्मद बाक़र रिज़वी साहब की रूह को इसाले सवाब कर दें।